Hello students, in our today's statistics lecture of the probability unit number 3, we learn the inverse probability rule or Bayes theorem. This theorem is given by the British mathematician based on the name of that mathematician. The theorem name is Bayes theorem. When it's applied, carefully remember one rule, that is, this theorem applies when the three mutually exclusive and exclusive events only. When there are the three exclusive, mutually exclusive and the exclusive events are there, then and only then this Bayes theorem will be applied. First, we understand the Bayes theorem. Bayes theorem means where there is a two kind of events are happening. First is a mutually exclusive, that means sub-event, main event and sub-event. The concept of the main event and the sub-event. There are three main events out of that depends on the one sub-event. When this kind of relation can be made, then we apply the Bayes theorem. Such as a D is a main event and the sub-event are A1, A2 and A3 for example. Then the probability of the A1, A2 and A3 and so on depends on the conditional probability with the event D. What is the Bayes theorem? Bayes theorem. When the main event D will happen, the sub-events are 3, A1, A2 and A3. And the three of them sub-event depends on the D, right? So this kind of a relationship are made, then the Bayes theorem will be applied. The D is a mutually exclusive, where A1, A2 and A3 are exclusive events. When there are three mutually exclusive and exclusive event will be there, then and only then we apply the Bayes theorem. One thing remember, that is A1, A2 and A3 conditional probability with the D. So what will be the conditional probability? A1 depends upon D. A1 depends upon D, then A2 again depend upon event D and A3 also depend on the D. So what would be the formula of the A1 slash D? The formula of the A1 slash D is equals to P AI intersects D upon P D. You know the formula of each of them, right? That's A1, A2 and A3 are depends upon the D. That means it is a conditional probability with D, right? Let's solve this Bayes theorem with the help of the example. Let's start the example number 10. There are 3 urns containing respective 3 white balls and 4 black balls, 2 white and 2 black balls, 1 white and 3 balls. Then our main 3 events is you have a 3 urns, respective balls were in there. 1 urn is selected as random, that means out of the 3 urns, first we have to select the urn that is the main event and the ball found it to be white, that is a sub event. एक बास्केट आपको सिलेक्ट करना है, 3 बास्केट में से पहले तो आपको एक बास्केट सिलेक्ट करना है, तो वो पहली इवेंट हुई, और उसी बास्केट में से अगर व्हाइट बॉल निकलेगा तो वो सब इवेंट हुई, यानी कि उसकी दूसरी इवेंट हुई, बराबर है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे Bayes थियरम लगाना है। जब भी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स विल बी देयर आर 3 बास्केट्स और 3 अर्न्स विल बी देयर, राइट? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल कम फ्रॉम फर्स्ट अर्न एंड द थर्ड अर्न। फर्स्ट अर्न का प्रोबेबिलिटी क्या होगा और थर्ड अर्न का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले तो देख लेते हैं कितनी बास्केट है, 3 बास्केट है, A1, A2 एंड A3। अब देखते हैं कितने किसके बॉल हैं।
3 white and 4 black balls, सेकेंड में 2 white and 2 black, थर्ड में है 1 white and 1 black, 3 ones हैं। पहले तो ये तीनों बास्केट में से हम एक बास्केट सिलेक्ट करेंगे, ये तीनों बास्केट में से एक बास्केट सिलेक्ट करेंगे जो होगा मेन इवेंट, और उसके अकॉर्डिंगली हमें वाइट बॉल कितने आएंगे वो डिपेंड करता है। समझ में आया? तो हम बास्केट सिलेक्ट करेंगे या तो A1 वाला, या तो A2 वाला, या तो A3 वाला। तो पहले तो हम तीनों बास्केट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। 3 बास्केट है, 3 बास्केट में से A1 सिलेक्ट होगा, तो हमें क्या चाहिए? M/n। A1 बास्केट हम सिलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/3। जस्ट बिकॉज 3 बास्केट में से एक बास्केट हमें सिलेक्ट करना है, तो 1/3 आएगा। सिमिलरली A2 के लिए, सिमिलरली A3 के लिए भी 1/3 आएगा। अभी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वाइट बॉल में से। सो अगर हम A1 बास्केट सिलेक्ट करते हैं तो वाइट बॉल कितने हैं? 3, तो आएंगे 3C1 अपॉन टोटल कितने हैं? 4 + 3 7C1। आंसर क्या आएगा? 3/7। समझ में आया? अगर हम A1 बास्केट सिलेक्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग वाइट बॉल इज 3/7, राइट? व्हाट इज दिस? दिस इज अ PD अपॉन A1, दैट इज मेन इवेंट पे ये इवेंट डिपेंड है। समझ में आया? बाद में अब सेकेंड बास्केट सिलेक्ट करते हैं। सेकेंड बास्केट में वाइट बॉल कितने हैं? 2, सो 2C1 अपॉन 2 + 2 4C1 इज इक्वल्स टू 2/4, दैट मीन्स 1/2, राइट? अब बारी आई थर्ड बास्केट की, उसमें वाइट बॉल कितने हैं? सिर्फ एक ही है, सो 1C1 अपॉन 2C1 इज इक्वल्स टू 1/2। अब ये दोनों अलग अलग इवेंट्स नहीं है, साथ में इवेंट्स है। ये होगा तो ही ये होगा, तो दिस इवेंट डिपेंड्स अपॉन दिस। अगर A1 बास्केट सिलेक्ट होगी तो ही ये वाइट बॉल सिलेक्ट होगा, A2 बास्केट सिलेक्ट होगी तो ही ये वाइट बॉल पिक होगा, राइट? सो दे आर डिपेंडेंट, दैट मीन्स इट इज अ conditional probability, so we will multiply with both. So 1/3 into 3/7, 3 get cancelled, answer is 1/7. Similarly multiply with this and this, 1/3 into 1/2, 1/6. Here 1/3 into 1/2 is equals to 1/6. समझ में आया? ऐसे हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की। अभी हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल कम फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, दैट मीन्स फर्स्ट बास्केट में से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो फर्स्ट बास्केट सिलेक्ट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी m है 1/7, दिस इज m। अभी हमें n फाइंड करना है। n कैसे फाइंड करेंगे? ये तीनों का प्लस, 1/7 + 1/6 + 1/6। सॉरी, मेरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 3 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 3 + 1 4 आएगा, सो यहाँ पे 4C1 आएगा, और यहाँ पे भी 4 आएगा, और यहाँ पे 12 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 12। सो 1/7 + 1/6 + 1/12, आंसर आएगा 33/84। आंसर आएगा 33/84। फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट अर्न।
फर्स्ट रन के लिए m क्या है, अगर हम फर्स्ट बास्केट सिलेक्ट करते हैं और वाइट बॉल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है, जो है हमारा m आएगा 1/7 एंड n टोटल 33/84. So probability PA1/D is equals to m upon n, 1/7. Denominator come into the numerator, so it will become reverse. 84 divided by 33. It will come 12 7s are 84, 4 3s are 12, 11 3s are 33, 3 3 कट, आंसर आएगा 4/11. फर्स्ट रन में से सिलेक्ट हुआ तो आंसर आएगा 4/11. सेकेंड है, थर्ड अनसिलेक्ट होगा तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी. थर्ड अनसिलेक्ट होगा तो हमारे पास m है 1/12, m is equals to 1/12 और n है 33/84. So PA3/D is equals to m upon n, 1/12 into 84/33. आंसर आएगा 7/33. ये है बेस थ्योरम. जब भी 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो और उसमें से सब इवेंट डिपेंड करती हो, पहले तो हमें 3 बास्केट में से एक बास्केट सिलेक्ट करनी है, वो मेन इवेंट हुई. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि तीनों में वाइट बॉल की नंबर्स और तीनों में टोटल नंबर्स भी अलग अलग हैं. तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी सब इवेंट हुई. तो जब भी ऐसा सम आएगा तब हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे. पहले तो इंडिविजुअली बास्केट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, अब उसी बास्केट में से वाइट बॉल की बस प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, देन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगी. लास्ट में तीनों का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा n, और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से हम आंसर देंगे. एक और सम करते हैं, देखते हैं. In the factory of 3 are 3 machines and their produced respective are 200, 300 and 500 units and item daily. The probability of the defective of this machine are 2%, 4% and 3% respectively. An item is taken at random from the day's production. It is found to be defective. Find the probability that item is produced by the second machine. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 मशीन है. मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3. तीनों मशीन की प्रोडक्टिविटी है 200, 300 एंड 500. डिफेक्टिव आइटम्स की परसेंटेज दी गई है 2%, 4% एंड 3%. तो हमें कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा. पहले तो हम तीनों मशीन में से एक मशीन सिलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से डिपेंड करेंगे उसकी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी. ठीक है, तो सबसे पहले आएगा M1, M2, M3. अब तीनों मशीन में से टोटल कितना प्रोडक्शन होता है, तो 500 + 300 + 200 टोटल 1000 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है, तो अगर वो M1 में से हो रहा है यानी कि मशीन 1 में से हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. सो 200 डिवाइड बाय 1000. सो 200 डिवाइड बाय 1000 इट विल कम 2/10. सिमिलरली M2 की 300 by 1000. 3/10. M3 की 500 by 1000.
It will come 5/10. अब हम सिलेक्ट करेंगे कि M1, अगर M1 में से प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ तो उसमें डिफेक्टिव आइटम कितना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 2%। M1 का डिफेक्टिव परसेंटेज क्या है 2%। सो हाउ कैन वी राइट द 2%? वी कैन राइट 2% एज अ 2/100, राइट। M2 का डिफेक्टिव परसेंटेज 4/100 एंड M3 का 3%, सो 3/100। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4/1000, 12/1000 and 15/1000। समझ में आया? अब तीनों का प्लस करते हैं n। 4 + 12 + 15, 31/1000, 31/1000। सो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड मशीन। सो सेकेंड मशीन का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए PM2/D is equals to M/N। सेकेंड मशीन का M क्या है 12/1000। सो 12/1000 इंटू N कितना है 31/1000। सो इट विल कम रिवर्स। So 1000 divided by 31. 1000 get cancelled. Answer is 12/31. This is the Bayes theorem. अब हम करेंगे illustration number 15. 3 families have respectively 2 boys and 3 girls, 3 boys and 2 girls, 2 boys and 2 girls. One child is selected at random from each family. Find the probability that the selected group of the 3 children will have all the boys, all girls, 2 boys and 1 girl. Carefully remember that our 3 families will be there, right? 3 families are there. So after seeing this 3 family, you can start applying the Bayes theorem. But no, carefully understand what is we have to find, what is given and what is we have to find. That is, what is given, one child is selected at random from each family. 3 फैमिली है, पहले तीनों फैमिली में से एक फैमिली सिलेक्ट नहीं करनी है। तीनों की तीनों सिलेक्टेड ही हैं, तीनों में से सिर्फ एक चाइल्ड सिलेक्ट करना है। समझ में आया? पहले हम 3 फैमिली है, 3 फैमिली को एक फैमिली पिक करेंगे, उसमें से बॉय कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, वो नहीं फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है? ईच फैमिली में से, दैट मीन्स इक्वल। हर एक फैमिली में से एक बच्चा यानी कि एक चाइल्ड तो सिलेक्ट करना ही है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे बेस थियरम अप्लाई नहीं होता। हम आगे की जो सम किए उसमें क्या था, यहाँ पे 3 बास्केट थी, पहले तो 3 बास्केट में से एक बास्केट सिलेक्ट कर रहे थे, राइट। और यहाँ पे क्या था, 3 मशीन था और हमें फाइंड करना था सेकेंड मशीन में कितनी डिफेक्टिव आइटम्स है। बट यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तीनों फैमिली में से एक एक चाइल्ड पिक करने हैं और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं कि तीनों की तीनों बॉयज़ हो, तीनों की तीनों गर्ल्स हो, या तो 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल हो। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे बेस थियरम अप्लाई नहीं होता। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 15. There are 3 families, 1, 2, 3. In the one family there are 2 boys and 3 girls. Here 3 boys and 2 girls. And third family 2 boy, 2 girl. 2 boys, 3 girls, 3 boys, 2 girls, 2 boy, 2 girls. Total 5 children, 4 children. अब प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? फर्स्ट सिचुएशन की, ऑल बॉयज, सारों के सारों, यानी कि
तीनों फैमिली में से जो बच्चे सिलेक्ट करेंगे वो सारे बॉयज़ होंगे। तो अगर पहली फैमिली में से हम एक सिलेक्ट करेंगे तो बॉयज़ कितने हैं 2, सो 2C1 अपॉन टोटल 5C1 इनटू। अब सेकेंड फैमिली की बारी, सेकेंड फैमिली में बॉयज़ कितने हैं 3C1 अपॉन 5C1। ये सिर्फ हमारा m है, हमें सिर्फ बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। बाद में थर्ड फैमिली की बारी, 2 बॉयज़ हैं तो ये m मिला हमें, अगर बॉयज़ सारे के सारे होंगे तो ये हमें मिला 2/5 इंटू 3/5 इंटू 2/4। सॉरी, ये डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं हम। 2/5 इंटू 3/5 इंटू 2/4, इट विल कम 100 ओवर हियर। 3 2 6, 6 2 12। अगर ऑल बॉयज़ होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12/100। सेकेंड सिचुएशन, ऑल आर गर्ल्स होगी तो क्या होगा, यहाँ पे 3 गर्ल्स हैं तो 3C1 डिवाइड बाय 5C1, 3C1 डिवाइड बाय 5C1। यहाँ पे 2 गर्ल्स हैं और यहाँ पे भी 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे 4 है। सो 2C1 अपॉन 5C1 इंटू 2C1 अपॉन 4C1, आंसर आएगा 3/5 इंटू 2/5 इंटू 2/4। 100 अपॉन 3 2 6, 6 2 12। अगर ऑल गर्ल्स होंगे तो भी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अब थर्ड सिचुएशन, केयरफुली अंडरस्टैंड द थर्ड सिचुएशन। व्हेन 2 boys and 1 girl, we have to find out the 2 boys and 1 girl. There are many options to find out the 2 boys and 1 girl, that is first family, second family, third family. अब देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड फैमिली में से बॉयज़ मिले तो थर्ड फैमिली में से क्या आएगा, गर्ल। ये फर्स्ट ऑप्शन है, प्लस दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ये 2 फैमिली में से बॉयज़ आएगा तो इसमें से गर्ल आएगी, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड में से बॉयज़ आएगा तो सेकंड में गर्ल आएगी। ये 3 ऑप्शन है, हमें 2 बॉयज़ और 1 गर्ल चाहिए। उसके ऑप्शन कितने हैं, फर्स्ट फैमिली में से बॉय, सेकंड फैमिली में से बॉय, थर्ड फैमिली में से गर्ल। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट फैमिली में से गर्ल, सेकंड में बॉय और थर्ड में बॉय। थर्ड ऑप्शन है बॉय गर्ल बॉय फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फैमिली। और इसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट जो ऑप्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, बाद में ऐड करेंगे, जहाँ पे भी ऑप्शन आएगा ऐड की साइन आएगी, ऐड करेंगे सेकेंड ऑप्शन, ऐड करेंगे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 1 बॉय, पहली फैमिली में से बॉय आया। पहली फैमिली में बॉय कितने हैं, 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, सो 2C1 अपॉन 5C1 इंटू सेकेंड फैमिली में से बॉय, तो बॉय कितने हैं सेकेंड फैमिली में 3C1 अपॉन 5C1 इंटू थर्ड फैमिली में से गर्ल है, गर्ल कितनी है 2, सो 2C1 अपॉन 4C1। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ, प्लस करेंगे सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में गर्ल है, यहाँ पे गर्ल कितनी है 2 गर्ल्स है, तो 2C1 अपॉन 5C1 प्लस बॉयज़ कितने हैं सेकेंड फैमिली में, बॉय कितने हैं तो कि 2C1 अपॉन 5C1। थर्ड फैमिली में से बॉय, थर्ड फैमिली में बॉय कितने हैं 2, सो 2C1 अपॉन 4C1। अब थर्ड ऑप्शन प्लस करेंगे, थर्ड ऑप्शन प्लस करेंगे। थर्ड ऑप्शन में बॉय कितने हैं 3 बॉयज़ हैं,
So 3c1 upon 5c1. And 2 girls, यहाँ पे 3c1 आएगा और यहाँ पे 2c1 आएगा। गर्ल्स कितनी हैं? सेकेंड फैमिली में गर्ल्स हैं 2, सो 2c1 अपॉन 5c1 एंड 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, यहाँ पे 3 आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 2/5 इंटू 3/5 इंटू 2/4 प्लस 3/5 इंटू 3/5 इंटू 2/4 प्लस 2/5 प्लस इंटू 2/5 इंटू 2/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12/100 प्लस 8/100 प्लस 18/100। इट विल कम 38/100। समझ में आया? थैंक यू।